Hi friends, welcome back on our YouTube channel. This is the next lecture of microwave electronics in which today we are going to discuss about rectangular cavity resonator. This is the second part of rectangular cavity resonator. We have already discussed our first part in which we have discussed about transverse electric wave. Now, here we will discuss about transverse magnetic wave. So, what is rectangular cavity resonator? Now, here we are showing a rectangular cavity resonator. So, rectangular cavity resonator हमने यहाँ पर दिखाया है. इसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू है वो हमारा रेक्टेंगल की फॉर्म में है, इसलिए इसको हमने रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर कहा है. A rectangular cavity resonator is a piece of rectangular waveguide of dimension A, B and C. So, we have already discussed about rectangular waveguide. Now, this is actually a piece of rectangular waveguide and its dimension is A, B and C. In figure, a rectangular cavity resonator of sides A, B, C is shown. So this is actually our rectangular cavity resonator. Here Z equal to C and X and Y are A and B. So the dimension of this rectangular cavity resonator is A, B and C. Now, we have already discussed about transverse electric wave in a rectangular cavity resonator. Now, here we will discuss about transverse magnetic waves in a rectangular cavity resonator. So, अगर हम रेक्टेंगुलर कैविटी रेजोनेटर में ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव की बात करें तो वो क्या होगा. Here we will consider about two transverse electric waves. Out of two, one moves in positive z direction and another in negative z direction. So यहां पर हम दो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव लेंगे. इन दो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक वेव में से एक वेव हमारी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव करेगी और दूसरी हमारी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में मूव करेगी. इट मींस if this is our z direction, then one wave is moving in this direction and another is moving in this direction, and on the superposition of these two waves we get static wave. Let the transverse component of electric field for transverse magnetic wave propagating along z direction be. So हम दो ट्रांसवर्स वेव कंसिडर कर रहे हैं. एक हमारी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है और दूसरी हमारी नेगेटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है. नाउ the wave which is propagating along positive z direction having the transverse component of electric field is E1t x y z t is equal to E1t of xy exponential j kz minus omega t. So जो वेव हमारी पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है, उसका जो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव के लिए वो हमने ये कंसिडर किया है. नाउ हियर E1t xy is the component of E1t xy zt which is free from z and t. So वो कंपोनेंट E1t xy zt का जो कि z एंड t से फ्री है उसको हमने E1t xy कहा है. नाउ ये इक्वेशन अभी हमने निकाली है. हियर E1t xy is the part of E1t xy zt which is independent of z and t, which can be derived
from the z component of E1z of xy by using the following equation. So अभी मैंने बताया था कि E1t xy एक्चुअल में E1t xy zt का वो पार्ट है जो कि z एंड t से फ्री है, और अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है देन हम E1 xy से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके लिए जो इक्वेशन हम यूज करेंगे वो इक्वेशन हमारी है E1t xy is equal to jk divided by k dash square I cap del by del x plus j cap del by del y E1z xy. Here k dash square equal to omega square mu epsilon minus k square. So k dash square एक्चुअल में हमारा ये है. Now the value of E1z xy can be obtained by using del 2 by del x2 plus del 2 by del y2 E1z xy plus k dash square E1z xy equal to 0. So इस इक्वेशन को यूज करके हम E1z xy की वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड अगर आपको E1z xy यहां से मिल जाएगा तो आप यहां पर पुट करोगे और इससे आपको E1t xy मिलेगा, और E1t xy की वैल्यू अगर हम यहां पर रखेंगे तो हमको E1t xy zt की वैल्यू मिल जाएगी. नाउ द बाउंड्री कंडीशन फॉर इट इज, अब इसके लिए बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में क्या है, E1z xy at x equal to 0 is equal to E1z of xy at x equal to a equal to 0. So दो बाउंड्री कंडीशन हमको ये मिल गई, एंड रेस्ट ऑफ टू बाउंड्री कंडीशंस आर E1z xy at y equal to 0 is equal to E1z xy at y equal to b equal to 0. So दो बाउंड्री कंडीशन हमारे पास में यहां पर है और दो बाउंड्री कंडीशन हमारी ये हैं, तो इस टाइप से हमारे पास में टोटल 4 बाउंड्री कंडीशंस हैं. नाउ इक्वेशन हमारी ये थी. ऑन सॉल्विंग द अबव इक्वेशन वी गेट, अब अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमको क्या मिलेगा, E1z xy is equal to E naught sin m pi x upon a sin n pi y upon b. So by solving this equation we get E1z xy equal to E naught sin m pi x upon a sin n pi y upon b. एंड बाउंड्री कंडीशन मैंने पहले बता दी थी, तो उन बाउंड्री कंडीशन को भी हमने यहां पर यूज कर लिया है और हमको ये इक्वेशन मिली है. Here k dash equal to pi root of m square upon a square plus n square upon b square. So k dash की वैल्यू हमारी ये होगी. Now E1t के लिए फॉर्मूला हमारे पास में ये था. अब हम क्या करते हैं, ये जो E1z xy की वैल्यू आई है इसको आप यहां पर पुट कर दो, जिससे कि हमको E1t xy की वैल्यू मिलेगी. सो E1t xy इक्वल टू jk upon k dash square I cap del by del x plus j cap del by del y E naught sin m pi x upon a sin n pi y upon b. So this is the value of E1t xy. Now to find the value of E1t, इसको हम अंदर ले लेते हैं. तो यहां पर आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है और यहां पर y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है. सो E1t इक्वल टू jk अपॉन k dash स्क्वायर एज इट इज. ये E नॉट भी हमारा कांस्टेंट है तो ये भी हमारा एज इट इज I कैप डेल बाय डेल x ऑफ sin m pi x अपॉन a sin n pi y अपॉन b. तो यहां पर आपको x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, इसलिए sin n pi y अपॉन b हमारे लिए कांस्टेंट है. सो sin n pi y अपॉन b हमने एज इट इज लिख दिया. अब इसका डिफरेंशियल करोगे विद रिस्पेक्ट टू x, सो cos m pi x अपॉन a, सो cos m pi x अपॉन a, एंड वापस इसका x के रेस्पेक्ट में होगा, सो m pi अपॉन a, सो m pi अपॉन a प्लस j कैप, सो प्लस j कैप डेल बाय डेल y ऑफ sin
एम पाई एक्स अपॉन ए साइन एन पाई वाई अपॉन बी। तो यहां पर आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, इसलिए ये हमारा कांस्टेंट। तो साइन एम पाई एक्स अपॉन ए हमने एज इट इज लिख दिया। इसका करो तो साइन का हो जाएगा कॉस, सो कॉस एन पाई वाई अपॉन बी, और वापस आप इसका y के रेस्पेक्ट में करोगे। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ E1t। The transverse component of electric field for transverse magnetic wave propagating along negative z direction will be। अभी हमने ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव जो हमारे पॉजिटिव z डायरेक्शन में मूव कर रही थी उसका ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिया था। अब अगर हम ट्रांसवर्स मैग्नेटिक वेव जो हमारे नेगेटिव z डायरेक्शन में प्रोपेगेट हो रही है उसका अगर ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लें तो वो क्या हो जाएगा, e to t x y z t is equal to e to t of x y एक्सपोनेंशियल माइनस j के जेड प्लस ओमेगा टी। तो सिंपली हमने z की जगह माइनस जेड रखा है जिससे हमको ये मिल गया। एंड हियर e to t x y is the component of e to t x y z t which is free from z and t। तो z and t से जो कंपोनेंट हमारा e to t x y z t का फ्री है उसको हमने e to t x y कहा है। नाउ E1t हमारा ये था एंड E2t हमारा ये है। अब अगर ये दोनों वेव हमारी सुपरपोज हो, ये वेव हमारी पॉजिटिव z डायरेक्शन में जा रही है जबकि ये वेव हमारी नेगेटिव z डायरेक्शन में जा रही है। सो अगर दोनों वेव का हम सुपरपोजिशन लें तो क्या होगा, ऑन सुपरपोजिशन ऑफ अबव टू वेव्स वी गेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो दोनों वेव के सुपरपोजिशन से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मिलेगी एंड दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज Et xyzt is equal to E1t xyzt प्लस E2t xyzt। अब एक वैल्यू ये है एक वैल्यू ये है, दोनों को आप ऐड कर दो। सो E1t xy एक्सपोनेंशियल jkz प्लस E2t xy एक्सपोनेंशियल माइनस jkz इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा टी। क्योंकि अगर आप इसको ओपन करोगे तो ये क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल jkz इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा टी, और इसको ओपन करोगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस jkz इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा टी। अब दोनों में से एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा टी कॉमन आ जाएगा तो इसको मैंने बाहर ले लिया है। सो ब्रैकेट में यहां पर क्या बचेगा, E1t xy एक्सपोनेंशियल jkz जो यहां पर लिख दिया, और यहां पर क्या बचेगा E2t xy एक्सपोनेंशियल माइनस jkz जो हमने यहां पर लिख दिया है। सो Et xyzt will be this one। Since the tangential component of electric field intensity vanishes at the wall of the cavity, so cavity की wall पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का टेंजेंशियल कंपोनेंट हमारा वैनिश हो जाता है। सो Et xyzt at z equal to 0 is 0 and Et xyzt at z equal to c equal to 0। So z equal to 0 and z equal to c are the wall of the cavity, and at the wall of the cavity the tangential component of electric field intensity vanishes। So Et xyzt at z equal to 0 and Et xyzt at z equal to c will be 0। Now Et की वैल्यू हमने ये निकाली थी ऑन अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। अब बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करते हैं। सो Et xyzt at z equal to 0 is 0। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर z की वैल्यू 0 कर दो और ये भी हमारा 0 हो जाएगा। सो 0 इज इक्वल टू E1t xy ये हमारा 1 प्लस E2t xy एंड बाहर हमारे पास में क्या है, एक्सपोनेंशियल माइनस j
ओमेगा टी। सो 0 इक्वल टू E1t xy प्लस E2t xy एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा टी, क्योंकि ये भी हमारा 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। नाउ यहां से आपको क्या मिलेगा, E1t xy प्लस E2t xy इक्वल टू 0 और E2t xy इज इक्वल टू माइनस E1t xy। सो E2t xy की वैल्यू नेगेटिव ऑफ E1t xy के इक्वल है। इसका मतलब यहां पर आप माइनस E1t xy रख सकते हो। सो ET xyzt इक्वल टू E1t xy एक्सपोनेंशियल j के z माइनस E1t xy एक्सपोनेंशियल माइनस j के z। तो हमने यहां पर ये वैल्यू रख दी है और बाहर एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t एज इट इज है। एंड अगर हम यहां से E1t xy कॉमन ले लें, so ET xyzt इक्वल टू E1t xy एक्सपोनेंशियल j के z माइनस एक्सपोनेंशियल माइनस j के z इंटू एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t। और ये क्या होता है, 2j साइन ऑफ के जेड, क्योंकि e रेज टू आयोटा थीटा cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड e रेज टू माइनस आयोटा थीटा cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, इट मींस e रेज टू आयोटा थीटा माइनस e रेज टू माइनस आयोटा थीटा इक्वल टू 2 आयोटा साइन थीटा। सो e रेज टू j के जेड माइनस e रेज टू माइनस j के जेड इज इक्वल टू 2j साइन के जेड। हियर j इक्वल टू रूट ऑफ माइनस 1। तो जो हमारा आयोटा होता है वही हमने यहां पर ऑपरेटर j लिया है। So this is equal to 2j E1t xy sin kz e raised to minus j omega t। Now next boundary condition क्या थी, Et xy zt at z equal to c is 0। तो आप क्या करोगे, यहां पर z की जगह c रखोगे तो ये हमारा c हो जाएगा और इसकी वैल्यू हमारी 0। सो 0 इक्वल टू 2j E1t xy sin kc exponential minus j omega t। So 0 equal to 2j E1t xy sin kc exponential minus j omega t। Now यहां से हमको क्या मिल जाएगा, sin kc इक्वल टू 0। सो sin kc इक्वल टू 0 एंड sin के टेबल में 0 कब होता है, sin n पाई पर। अब m हमने ले लिया है, n ले लिया है, इसलिए यहां पर हम p लेंगे। सो साइन के सी इक्वल टू साइन पी पाई और k इक्वल टू पी पाई अपॉन सी। सो के सी इक्वल टू पी पाई और k इक्वल टू पी पाई बाई सी। हियर p इक्वल टू 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब आप क्या करोगे, यहां पर अगर मैं k की जगह p पाई बाई सी रख दूं, सो ई टी एक्स वाई जेड टी की वैल्यू मिल जाएगी और वो क्या आएगी, Et xyzt is equal to 2j E1t xy sin p pi z upon c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t। तो आपने क्या किया है, यहां पर k की जगह ये वैल्यू रख दी जिससे हमको ये वैल्यू मिल गई है। नाउ E1t की वैल्यू हमारी ये थी एंड Et xyzt is equal to 2j E1t xy sin p pi z upon c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t आया है। सो हम क्या करते हैं, यहां पर E1t xy की वैल्यू रखते हैं और E1t xy क्या है, ये पूरा। तो जैसे यहां पर वैल्यू रखोगे साइन p पाई z अपॉन c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t, ये पूरी वैल्यू यहां पर है और बाहर हमको क्या मिलेगा, j के ई नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर इंटू 2j। सो j इंटू जे स्क्वायर और जे स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है। इसका मतलब अगर हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करें तो वो क्या हो जाएगा, माइनस 2k ई नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर। तो जैसे ही आप यहां पर
E1t xy की वैल्यू ये रखोगे, Et xyzt की वैल्यू हमको ये मिल जाएगी। Here p equal to 0, 1, 2, 3 and so on. Now यहां से हम x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर x कंपोनेंट निकालना है, सो x कंपोनेंट मतलब आई कैप का कोफिशिएंट। सो आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? -2k E नॉट अपॉन k डैश स्क्वायर m पाई बाई a cos m पाई x अपॉन a sin n पाई y अपॉन b sin p pi z upon c exponential minus j omega t. So Ex equal to minus 2k E naught upon k dash square into m pi by a cos m pi x upon a sin n pi y upon b sin p pi z upon c exponential minus j omega t. अब E y x y z t निकालते हैं। सो अगर आपको E y x y z t निकालना है तो हमको जे कैप का कोफिशिएंट लेना है, और जे कैप का कोफिशिएंट क्या है? -2k E नॉट अपॉन k डैश स्क्वायर n पाई बाई b sin m पाई x अपॉन a cos n पाई y अपॉन b sin p पाई z अपॉन c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t. सो E y x y z t is equal to -2k E नॉट अपॉन k डैश स्क्वायर into n पाई बाई b sin m पाई x अपॉन into n pi by b sin m pi x upon a cos n pi y upon b sin p pi z upon c exponential minus j omega t. So this is the x component of electric field and this is the y component of electric field. अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का z कंपोनेंट निकालना है, और वो कैसे निकालोगे? The value of Ez xyzt can be obtained as, अब Ez xyzt निकालना है तो उसको निकालने के लिए Ez xyzt is equal to E1z xy exponential jkz plus E2z xy exponential minus jkz exponential minus j omega t. तो हम ये फॉर्मूला काम में लेंगे एंड E2z एंड E1z की वैल्यू हमारी सेम होती है। सो E2z xy को हम E1z xy लिख देते हैं। सो Ez xyzt is equal to E1z xy exponential jkz plus E1z xy exponential minus jkz exponential minus j omega t. अब इन दोनों टर्म से E1z xy कॉमन आ जाएगा। सो दिस विल बी इक्वल टू E1z xy and in bracket exponential jkz plus exponential minus jkz exponential minus j omega t, और इसकी वैल्यू क्या है? ट्वाइस cos kz. सो ये हमारा ट्वाइस cos kz हो गया। सो Ez xyzt is equal to ट्वाइस E1z xy cos kz exponential minus j omega t. So Ez xyzt की वैल्यू को ये मिलेगी and this is the z component of electric field. Now E1z xy हमारा E नॉट sin m pi x upon a sin n pi y upon b था, तो आप क्या करोगे? यहां पर E1z xy की जगह ये वैल्यू रख देते हैं जिससे कि Ez xyzt की वैल्यू को मिल जाए in terms of x, y and z. And here k is equal to p pi by c, और साथ में यहां पर आप k की जगह p pi by c भी रख दो। सो Ez xyzt is equal to 2, ये 2 as it is, ये हमारा आ गया E नॉट sin m pi x upon a sin n pi y upon b. So sin m pi x upon a sin n pi y upon b cos k की जगह आ जाएगा p pi by c. So cos p pi z upon c exponential minus j omega t. So this is the value of z component of electric field. अब हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट मिल गया, y कंपोनेंट मिल गया एंड z कंपोनेंट मिल गया है। सो
we can easily determine the x, y and z component of magnetic field. The components of magnetic field intensity can be calculated by Maxwell's equations. So Maxwell equation यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के x, y, z कंपोनेंट की वैल्यूज निकालेंगे फ्रॉम मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन। अब मैक्सवेल का थर्ड इक्वेशन क्या है? डेल क्रॉस E is equal to minus mu del by del t of H, and here E is in terms of x, y, z t and H is in terms of x, y, z t। और डेल क्रॉस E क्या होता है? I कैप, J कैप, K कैप, डेल्टा बाई डेल्टा x, डेल्टा बाई डेल्टा y, डेल्टा बाई डेल्टा z, Ex, Ey, Ez का डिटरमिनेंट। सो I कैप, J कैप, K कैप, डेल्टा बाई डेल्टा x, डेल्टा बाई डेल्टा y, डेल्टा बाई डेल्टा z, Ex, Ey, Ez इज इक्वल टू माइनस म्यू एंड डेल बाई डेल टी होता है माइनस जे ओमेगा एंड एच एज इट इज। अब यहां पर ये नेगेटिव और ये नेगेटिव हो जाएगा पॉजिटिव, सो दिस विल बी जे ओमेगा म्यू वेक्टर एच हो जाएगा आई कैप एच एक्स प्लस जे कैप एच वाई प्लस के कैप एच जेड। नाउ अगर आपको एच एक्स निकालना है सो हमको आई कैप का कोफिशिएंट लेना है और यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट क्या है? डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई बाई डेल जेड। सो डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई बाई डेल जेड, और यहां पर हमारे पास में जे ओमेगा म्यू था, सो जे ओमेगा म्यू हमारा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। सो एच एक्स इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू इंटू डेल ई जेड अपॉन डेल वाई माइनस डेल ई वाई बाई डेल जेड। Since Ey is this one and Ez equal to this one, अब Ey और Ez दोनों की वैल्यूज हमको पता है, सो Hx निकालना है। सो बाहर तो हमारे पास में आएगा 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू। अब इसमें और इसमें ट्वाइस ई नॉट कॉमन है, सो ट्वाइस ई नॉट भी आप बाहर ले लो। सो ट्वाइस ई नॉट हमने बाहर ले लिया, 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू भी बाहर आ गया। अब हमको इसका y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। सो यहां पर cos p पाई z अपॉन c एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी, सो cos p पाई z अपॉन c एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी, ये हमने एज इट इज लिख दिया। विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करना है, इसका मतलब ये भी हमारा एज इट इज रहेगा। सो sin m पाई x अपॉन a। अब इसका आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, तो ये क्या हो जाएगा? cos n पाई y अपॉन b, सो cos n पाई y अपॉन b, और साथ में यहां से आपको क्या मिलेगा? n पाई अपॉन b, सो n पाई बाई b। नाउ अब इसका आपको z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, सो ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशियल कर रहे हो, इसका मतलब एक्सपोनेंशियल माइनस जे ओमेगा टी एज इट इज, sin m पाई x अपॉन a cos n पाई y अपॉन b भी एज इट इज, सो sin m पाई x अपॉन a cos n पाई y अपॉन b, ये कांस्टेंट। अब इसका आप z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, सो cos p पाई z अपॉन c, सो cos p पाई z अपॉन c, और यहां से क्या बचेगा? p पाई बाई c, और बाहर हमारे पास में यहां पर क्या है? k अपॉन k डैश स्क्वायर, सो प्लस k by k dash square into p pi by c. So this is the value of x component of magnetic field. So hx की वैल्यू को ये मिल जाएगी। नाउ इक्वेशन हमने ये निकाली थी, अब हमको hy की वैल्यू निकालनी है। सो hy क्या आ जाएगा? 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू, सो 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू, आपको जे कैप का कोफिशिएंट लेना है, इसका मतलब डेल बाई डेल जेड ऑफ ई एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई जेड, सो डेल बाई डेल जेड ऑफ ई एक्स माइनस डेल बाई डेल एक्स ऑफ ई जेड, सो एच वाई हमारा ये हो जाएगा। नाउ ई एक्स हमारा ये है एंड ई जेड हमारा ये है, और एच वाई की वैल्यू निकालनी है, सो 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू एज इट इज, और साथ में
इसमें और इसमें ट्वाइस ई नॉट भी कॉमन है, सो ट्वाइस ई नॉट। अब नेगेटिव की बात कर रहे हैं, सो पहले आप इसका जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करोगे, तो ये माइनस में बाहर ले लेता हूं, सो यहां पर क्या बचेगा, cos m pi x upon a sin n pi y upon b e raised to minus j omega t. So cos m pi x upon a sin n pi y upon b exponential minus j omega t, and m pi upon a भी हमारा एज इट इज है, तो m pi by a, और यहां से इसका डिफरेंशियल करोगे, सो cos p pi z upon c, cos p pi z upon c, और साथ में आएगा p pi by c, और यहां पर हमारे पास में है k अपॉन k डैश स्क्वायर, सो k बाई k डैश स्क्वायर p पाई बाई c। अब ये नेगेटिव यहां पर आएगा, और आपने माइनस बाहर ले लिया है, इसलिए हम यहां पर प्लस बना देंगे। अब यहां पर विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशियल कर रहे हो, सो साइन n पाई y अपॉन b cos p पाई z अपॉन c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t, सो sin n pi y upon b cos p pi z upon c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t, ये एज इट इज। अब इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करो, सो cos m pi x upon a, सो cos m pi x upon a, और साथ में आएगा m pi upon a, सो m pi upon a, सो h y की वैल्यू हमको ये मिलेगी। नाउ h z हमको निकालना है, तो h z कैसे निकलेगा, यहां से एच जेड निकाल देते हैं, सो एच जेड इक्वल टू 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू डेल ई वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई, सो डेल ई वाई बाई डेल एक्स माइनस डेल ई एक्स अपॉन डेल वाई। नाउ ई एक्स हमारा ये है, ई वाई हमारा ये है, सो 1 अपॉन जे ओमेगा म्यू बाहर, और इन दोनों टर्म से माइनस 2 के ई नॉट अपॉन के डैश स्क्वायर, ये भी कॉमन आ जाएगा। सो अब आपको पहले इसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, सो ये वैल्यू हमारी एज इट इज, सो cos n पाई y अपॉन b sin p पाई z अपॉन c एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t, और आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो, सो ब्रैकेट में क्या जाएगा, cos m पाई x अपॉन a, यहां पर n पाई अपॉन b है, और यहां से आएगा m पाई बाई a, सो इनटू m पाई बाई a इंटू n पाई बाई b। अब इसकी बात करते हैं, तो इसका आपको y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है, सो cos m पाई x अपॉन a, एंड ये पूरा हमारा कांस्टेंट, सो sin p पाई z अपॉन c, ये एज इट इज ले दिया, एक्सपोनेंशियल माइनस j ओमेगा t, ये भी हमने ले लिया। अब यहां से बचा है cos m पाई x अपॉन a, सो cos m पाई x अपॉन a, m पाई x अपॉन a, अब इसका डिफरेंशियल करोगे, तो यहां से आएगा cos n पाई y अपॉन b, सो cos n पाई y अपॉन b हमने कॉमन ले रखा है, और साथ में आएगा n पाई बाई b, और यहां पर ऑलरेडी है m पाई बाई a, सो इंटू m पाई बाई a इंटू n पाई बाई b, सो ये पूरा भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब एच जेड की वैल्यू हमको जीरो मिलेगी, सो एच जेड इक्वल टू जीरो। सो जैसे आप इसको सॉल्व करते हो, एच जेड की वैल्यू हमको जीरो मिलेगी। इट मीन्स द जेड कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। नाउ के डैश स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के स्क्वायर था, एंड के डैश इक्वल टू पाई रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर दो और यहां पर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ऑल्सो k इक्वल टू पी पाई बाई सी,
तो यहां पर k की जगह हम p पाई बाई c भी रखेंगे। सो जैसे आपने इसका स्क्वायर किया, पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहां पर रख दिया है, सो इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन माइनस के की जगह हमको p पाई बाई c मिला है, सो p पाई बाई c होल स्क्वायर, सो हमको ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन निकालना है, इसका मतलब इसको आप लेफ्ट में लेकर चले जाओ तो पॉजिटिव बन जाएगा। सो ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इक्वल टू एम पाई अपॉन ए होल स्क्वायर प्लस एन पाई बाई बी होल स्क्वायर प्लस पी पाई बाई सी होल स्क्वायर, और यहां से आप चाहो तो पाई स्क्वायर कॉमन ले सकते हो। सो अगर आप पाई स्क्वायर कॉमन लोगे, सो पाई स्क्वायर और यहां पर क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो जैसे आप पाई स्क्वायर कॉमन लोगे हमको ये मिल जाएगा, एंड ओमेगा हमको निकालना है। सो यहां से हमको क्या मिला था, ओमेगा स्क्वायर म्यू एप्सिलॉन इज इक्वल टू पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ओमेगा निकालना है, तो ये और इसका भी रूट हो जाएगा, और साथ में यहां पर भी रूट आ जाएगा। सो ओमेगा इक्वल टू पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सो ओमेगा इक्वल टू पाई अपॉन रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन रूट ऑफ एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ओमेगा की वैल्यू रख दो, सो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एफ, अब पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, सो एफ क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 रूट ऑफ म्यू एप्सिलॉन एम स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर होल पावर हाफ। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। नाउ एफ की वैल्यू हमने ये निकाली है। दिस इक्वेशन गिव द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसीज for different sets of m and p for different cavity modes. So different cavity modes के लिए, different sets of m and p के लिए रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हमको इस फॉर्मूले से मिलती है। सो आपको सिंपली m n and p की वैल्यू रखनी है, सो डिफरेंट मोड्स के लिए हमको f की वैल्यू मिल जाएगी। If two or more independent cavity modes have the same resonant frequencies, then it is known as degenerate frequency. So अगर दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट कैविटी मोड्स की सेम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होती है तो उसको हम डीजेनरेट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। It is found that the modes TM000, TM001, TM010 and TM100, TM101 and TM011 do not exist in the cavity. So transverse magnetic wave में ये कैविटी मोड्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी मोड्स हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे। The lowest possible mode or dominant mode in transverse magnetic wave is the lowest possible mode or dominant mode in transverse magnetic wave. अब यहां पर हम m की जगह 1, n की जगह 1 एंड p की जगह 0 रखते हैं। सो लोएस्ट पॉसिबल मोड के कॉरेस्पॉन्डिंग हमको फ्रीक्वेंसी जो मिलेगी या हमको जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिलेगी वो क्या होगी, द अलाउड फ्रीक्वेंसी corresponding to dominant modes is fundamental frequency, and यहां से fundamental frequency हमको क्या मिलेगी, f110 is equal to 1 upon 2 root of mu epsilon root of 1 by a square plus 1 upon b square. So this is the allowed frequency corresponding to dominant mode. So dominant mode के corresponding allowed frequency ये fundamental frequency की वैल्यू को ये मिली है। So here we end our session. In the current session, we have discussed about the rectangular cavity mode for transverse magnetic wave. So goodbye.